شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے سیریز وائز کہ موت کا موجد کون ہے، ہم اس کو کافی ڈیٹیل سمجھ چکے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ اسی موت کو انسان کے لیے فائدہ مند کس نے بنا دیا۔ پھر ہم نے اس پر بھی بات کی کہ کیا جو مر جاتے ہیں ان کے لیے ماتم کرنا روا ہے یا نہیں از روئے بائبل۔ آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں لوگ یا جن کے گھر میں سوگ ہوتا ہے، کیا ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے یا نہیں، جبکہ بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ماتم والے گھروں میں کھانا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 16واں باب اور اس کی آیت ہے 7، بلکہ یہ 6ٹھی آیت سے میں پڑھتا ہوں تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے۔ اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں۔ یہ دیکھ لیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں، یہ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ اگر کوئی اپنے بڑوں کے لیے یا جو ان کے عزیز ہیں کوئی مر جائے تو وہاں کھانا نہ کھلایا جائے تو یہ لعنت ہے۔ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ نہیں، اب بہتر ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے کھانا۔ اور میں نے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لوگوں کو دیکھا ہے، اور مجھے کئی لوگوں نے ویسے بھی بات کی اور کہا کہ جی آپ خدمت میں ہیں اور آپ بشپ ہیں، آپ اپنے پاسٹرز کو کہیں کہ اپنے چرچز میں کہیں کہ جی آئندہ سے جہاں کسی کے گھر میں ماتم کے لیے جائیں، غم کے لیے جائیں، افسوس کے لیے جائیں، تو وہاں پر سے کھانا نہ کھا کے آئیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کلام میں لکھا ہوا ہے، رونا، غم کرنا، پیٹنا، یہ جو زخمی کرنے کی بات ہے یہ پیٹنے کی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہوتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں عورت جو ہے وہ روتی نہیں اپنے شوہر کے لیے، وہ پکھانڈ کرتی ہے۔ یار آپ کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہو؟ جس کا ساتھی چلا گیا، جس کا دیا گل ہو گیا، جس کا آسرا ختم ہو گیا، جس کا شیلٹر ختم ہو گیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ پکھانڈ ہے، جبکہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ بیوہ کے بارے میں کہتا ہے میں تیرا شوہر ہوں، یتیموں کو کہتا ہے میں ہوں تمہارا آسرا، اور آپ کہتے ہو کہ پکھانڈ کرتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کھانا جو کسی کے بے شک تمہاری نیت اچھی ہے، آپ کہتے ہو کہ جی وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک تسلی کا ذریعہ ہے، تنہائی کو ختم کرنے کا موقع ہے، تاکہ لوگ آئیں، کھانا کھائیں،
और एक दूसरे को तसल्ली दें। वो शख्स जो आपके लिए लाखों रुपए छोड़ गया, जो लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ गया, क्या आप उसकी प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं और उसके लिए खाना बनाकर नहीं दे सकते कि लोग आएं और उसके बारे में बातें करें और उसका तज़किरा हो, उसकी याद रहे और वो आप लोगों को भी तसल्ली दें। बल्कि यिर्मयाह के किताब में लिखा है 14वें बाब की दूसरी आयत आप पढ़ लें, वहां पर मातमी लिबास का भी जिक्र है। यिर्मयाह 14वां बाब आयत है 2। यहूदा मातम करता है और उसके फाटकों पर उदासी छाई है, वो मातमी लिबास में खाक पर बैठे हैं और यरूशलेम का नाला बुलंद हुआ। उनके उमरा अपने अदना लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वो चश्मों तक जाते हैं पर पानी नहीं पाते और खाली घड़े लिए लौट आते हैं। वो शर्मिंदा पशेमान होकर अपने सर ढांपते हैं। ये सारी हालत है एक इस तरह की मातम की कि मातमी लिबास लोग पहनते हैं। आप अपने करीब देख लें, जो शिया हजरात हैं वो मातमी लिबास पहनते हैं। इधर कहा गया है जो यहूदा का कबीला है वो सारे मातमी लिबास पहन के बैठे हैं। ये बाकायदा तौर पे एक पता चलता था कि ये सोग है। हिंदू जो है वो भी मातमी लिबास पहनते हैं। खुशी का लिबास है, गोटे किनारियां लगाए होते हैं, लड़के टाइयां बहुत खूबसूरत सूट पहनते हैं, और इसी तरह मातम का भी लिबास है। पता चलता है, दूर से पता चल जाता है ये मातमी है, ये मातम में है, ये गम में है। ये नहीं कहा गया कि कपड़े ना पहनो। एक टाइम ऐसा भी था, अयूब के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने कपड़े फाड़े, जमीन पर बैठ गया। फिर हम देखते हैं कि जब किसी का मर जाता था तो वो अपने कपड़े फाड़ता और मिट्टी अपने सर में डालता, राख सर में डालता, जमीन पर बैठ जाता, ताकि ये दिखावा नहीं है मेरे अजीजों। जिसके तन लगे वो ही जानता है। लोग रोटी नहीं खाते कितने दिन तक, उनके अंदर इतना गम होता है। और ये जो बाबू पादरी हैं या ये जो डिनोमिनेशन है जो कह रहे हैं ये चीज़ें गलत हैं, आप अंदाज़ा करें कि आप लोगों के साथ किस तरह सख्ती करते हैं। और जो कहा गया कि हारून को कहा गया कि मातम ना करना, जो कहना है वो मातम ना करें, भाई वो उन दिनों की बात है जब कुर्बानियों के दिन थे, आम रूटीन की बात नहीं। क्या कहनों के बच्चे नहीं होते थे? कहनों की बीवियां नहीं थी? वो अपनी बीवियों के साथ नहीं रहते थे? आप किस दुनिया में रहते हैं? आप बाइबल को क्यों तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं और समझते हैं? कहनों की बीवियां भी थी, कहनों के बच्चे भी थे, लेकिन जब कहा गया कि कहन मातम ना करें, वो उन दिनों में कुर्बानियों का टाइम है, नजरों न्याजों का टाइम है। अगर कहन उस दिन मसल्ला बिछा के बैठ जाए, रोना कराना शुरू कर दे, तो कौन उसकी जगह पे कुर्बानी जाके चढ़ाएगा? कौन जाके वो खिदमत को अंजाम देगा? आपने पकड़ के तो आम उस बंदे को जो मोहल्ले का बंदा है, सिगरेट नोश है, जो कभी कभी चर्च जाता है, ले मैन है, नाम का मसीही है, आपने उसको भी हारून कहन की जगह पे कर दिया कि नहीं, हमें मातम नहीं करना चाहिए, मसीहों को मातम नहीं करना चाहिए, मसीहों को रोना नहीं चाहिए, मसीहों को कहा गया है कि जी तुम आंसू ना बहाओ, गम ना करो। किधर की आयत किधर फिट करते जा रहे हो? और लोगों के अंदर से एहसास उड़ा दिया है तुम्हारी इस मनादी ने। कैथलिक ने ज्यादा कर दिया है, तुमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और बाइबल को भूलते जा रहे हो। इसीलिए ये जो मेरा बराबर मजमून चल रहा है कई सालों से, ये 1988 से मैंने शुरू किया था, आप अंदाज़ा कर लें कितने साल हो चुके हैं।
बाइबल और हम, बाइबल क्या कहती है और हम क्या मान रहे हैं और हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बाइबल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम मिशनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भाई टोलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पैंती कास्टल आ गया, ये फलाना कास्टल आ गया, ये फलाना कास्टल आ गया, ये फलाना कास्टल आ गया, इतने इनके फिरके बन गए। लेकिन बाइबल का फिरका क्या है? फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट कौन है? मसीह के दोस्त कौन है? मसीह के दोस्त बनो, मिशनों के दोस्त ना बनो, पादरियों के दोस्त ना बनो। यूहन्ना की इंजील में लिखा है उसके 15वें बाब की 14वीं आयत में कि जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करते हो तो तुम मेरे दोस्त हो। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है। दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी, यानी कि हमें हर रोज की तरबियत करता है कलाम। हमें खाना किस तरह से है, हमें रहना किस तरह से है, हमें पीना किस तरह से है, सोना किस तरह से है। ये नहीं कि सोते ही रहो बस, ये बहुत अच्छी ड्यूटी मिल गई है सोने की। खुदा तो अपने बंदे को नींद में दे देता है, बस नींद में ही रहो क्या ताकि खुदा दे दे आपको। सुस्त आदमी, ये आयत नहीं पढ़नी कि सुस्त आदमी ख्वाहिश करता है, अपना हाथ थाली तक लेके जाता है और मुंह तक लाते लाते थक जाता है। कमिटमेंट नहीं कोई पूरी करते, हर जगह पे लेट जाना, हर जगह पे आपका करैक्टर क्या है, ना तो अपने कॉलोफेल में पक्के हैं, ना अपनी कमिटमेंट में पक्के हैं, ना इबादत पे जाना है वो भी लेट है, और शादी पे जाना है वो भी लेट है, खुशी में जाना है वो भी लेट है, गमी में जाना है वो भी लेट है। हाँ, खाने पीने का मामला हो वो लेट तो फिर भी जाना है, लेकिन पेंजा सही चाड़ना है। वो पादरियों का देखो तो वो पेट कहाँ पे है और बेल्ट कहाँ पे है और बस खाते जाओ। लिखा अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख। ये भी देख किसी का हक ना खा जाए। खाता जा रहा है, कोई दूसरा बंदा भी है जिसने इसी डोंगे से सालन लेना है। तूने अपनी प्लेट भर ली है बोटियों से या सालन से, और अपनी रोटी तू पकड़ पकड़ के लपेटता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, खाता जा रहा है। ये देख कोई और भी है। अगर आप खाने पीने में सैक्रिफाइस नहीं करते, अपनी ख्वाहिशों की किस तरह करते हैं? उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, कारोबार करना, अहदों पे मां करने, ये सब कुछ बाइबल बताती है। जिंदगी का तौर तरीका बाइबल बताती है। कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी। ये थोड़ा कि बस जो सामने आ गया बस पिंज जाओ, खा जाओ। सारा साल खाते रहते हैं और जब ईद आती है पागल हो जाते हैं, जाके छिछड़े इकट्ठे करते हैं लोगों के दरवाजे के सामने, हमें भी दे दो दी, हमें भी दे दो। अगर 2 दिन ना खाओगे तो मर जाओगे। कोई गोश्त इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपकी पहचान क्या है? क्या आप मानते हो कि आप खुदा के लोग हो? क्या आप जानते हो कि आप खुदा के लोग हो? आपको ये ख्याल आता है कि हम खुदा के नाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं? इबादत पे भी लेट जाते हैं। किस तरह से आपकी तरक्की हो सकती है? बहुत सारी औरतों के घर उजड़ गए हैं। बंदा बेचारा भूखा काम पे जाता है, सोई रहती हैं। जब बंदा आता है तो सर पे कपड़ा बांध के बैठ जाती है। उसको वो ऐसी ऐसी बातें सुनाती है ताकि उसकी टेंशन बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेस बढ़ जाए। कभी बच्चों की बातें सुनानी, आटा मुक गया जे, ਉਹਦੀ ਲੱਤ टुट गई जे, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ टुट गई है, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ फ्रिज ਦਾ गैस मुक गया, बिल इन्ना आ गया। वो बंदा बेचारा सोच में पड़ जाता है मैं किधर आ गया हूँ, ये कौन सी बला आगे बैठी हुई है जिसने आते ही सारा दिन काम पे स्ट्रेस में रहा हूँ। ये सिखाने वाली बातें हैं पादरियों की, और पादरियों ने तो पकड़ा हुआ है, आओ जी टोकरा उठाया हुआ है, क्या हो शफा ले लो, शफा ले लो, दयकी दे जाओ, चंदा दे जाओ,
नजराना दे दो। ये तो आसान काम शुरू कर लिए। झूठे पादरी भी बहुत हैं, झूठे नबी मसीह के टाइम में भी थे, झूठे शिगिर्द भी थे, ये इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन जो सच्चे हैं वो तो कम से कम करो ना। जो अपने आप को समझते हो कि आप कलाम को जानते हो, जिनका तजर्बा हो गया, वो तो शुरू करो, वो तो बताया करो लोगों को, नौजवान बेटों को, बेटियों को घर के बारे में बताओ, कारोबार के बारे में बताओ, पढ़ाई के अफादियत समझाओ, बिजनेस समझाओ। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं तुम्हारे दरमियान, उन कॉलोनियों में कोई आलू छोले बेचने शुरू कर दो, कोई चावल बना के बेचना शुरू। आपके मोहल्लों में भी दूसरे लोग आके बेचते हैं, वहां पे आपको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप नहीं करते। सब्जी की दुकानें वो भी नहीं है, करियाने की दुकानें वो भी नहीं है। तो फिर ये जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि यहूदा मातम करता है, तो फिर मातमी लिबास भी उसी पे आता है, रोना कराना भी है। आप अगर खुदा को समझ गए हो, आप जान गए हो कि यीशु हमारा निजात देंदा है, रूह अल कुद्दस हमारा मददगार है, रूह अल कुद्दस हमें इस लायक बना देता है कि हम खुदा की कुर्बत में आ जाए। रूह अल कुद्दस तो ज़िंदगियां बदल देता है, वो ख्याल बदल देता है, वो सोचें बदल देता है, वो घर हिला देता है। आपके अंदर कौन सा रूह है जो टच करते हो? आपके अंदर कौन सा रूह आता है? किसने आपको टच किया कि अभी तक तुम्हारी हालत नहीं बदल रही? वो टच करने वालों की हालतें बदल गई हैं, और तुम्हें जो कहते रहते हैं टच, तुम्हारी हालत नहीं बदलती। आप क्यों रूह अल कुद्दस का मजाक उड़ाते हैं? ये गुनाह है। कलाम में लिखा है जो रूह के खिलाफ ऐसी बातें करेगा वो माफी नहीं है। ये मसीह खुदावंद ने खुद फरमाया, और आप अलानिया रूह का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए होश के नाखन लें, उस बयान को याद रखें जो खुदा ने आदम को कहा, तू खाक है। आप ये याद रखें, पादरी भी, बिशप भी, जितने ये टच का रटा लगाने वाले हैं, जो लोगों को वर्ग लगा रहे हैं, याद रखें कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। यही तेरे पैसे इकट्ठे किए, यही ड्रामा किया, ये पखंड किया, ये मदारी की, यही तेरे बेटे बेटियां बेरा रवि के शिकार होंगे, अयाश होंगे, नशेबाज होंगे, बदकरदार होंगे, हर तरह से बदी को जानने वाले होंगे, क्योंकि आपने हर तरह की बुराई से समझौता करके उनको पाला है। एली कैन नरम रवैया रखता रहा अपने बच्चों के साथ, और दोनों ही एक दिन में फुड़क के मर गए। लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे और वो उसी कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने कबाब बना बना के खा रहे थे। जो कोई चंदे और नजराने और शुक्राने और हदिये और दय यकियों से अयाशियां कर रहे हैं, ये फुड़क फुड़क के मरेंगे। इनको लग पता जाएगा कि क्या होता है। खुदा गयूर खुदा है, उसके नाम को इस्तेमाल करना और उसके नाम पे अयाशियां करनी खुदा माफ नहीं करेगा। आपने लोगों के दरमियान से कल्चर ख़त्म कर दिया है, बाइबल के रसूम ख़त्म कर दिए हैं, बाइबल की अदात ख़त्म कर दी है, बाइबल की खूबसूरती ख़त्म कर दी है, मुक़द्दसीन का जो मेल जोल है वो ख़त्म कर दिया है। रोना मना है, मातम करना मना है, मेमोरियल सर्विस मना है, ये मना है, वो मना है, वो मना है, पैसे इकट्ठे करने नहीं मना, चोरी करना नहीं मना, वर्ल गाना नहीं मना, लोगों से किसी ना किसी मद में पैसा इकट्ठा करना ये नहीं मना, फैशन करना नहीं मना, मदारियों की तरह कपड़े पहनने नहीं मना। तो मना क्या है? सिर्फ बाइबल की तालीम मना है। काश के खुदावंद आपको समझ दे, तौफीक दे। यशायाह की किताब में लिखा है, तू गला फाड़, दरेग ना कर। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं भाई, करते रहेंगे जब तक जीते हैं, हमें कोई पसंद करे या ना करे। मैं कहता हूं काश खुदा सबकी आंखें खोले
اور وہ کلام کو بھی سمجھیں، خدا کو بھی سمجھیں، پاک روح کو بھی جانیں، کلیسیا کو بھی جانیں، کیونکہ کلیسیا خدا کا بدن ہے۔ اور اس بدن کی تباہی نہ کریں، اس بدن کی بے حرمتی نہ کریں، اس بدن کو خوبصورت رہنے دیں۔ بدن کے اندر آنسو بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، شادمانی بھی ہے، صرف چندہ ہی نہیں رہ گیا۔